ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲ ਵਿਦ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ। So as you all know, we have started this lecture series on ethics, which is very much relevant for your upcoming exam of Punjab PCS Mains। ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, right? And I expect you are preparing very well for that particular exam, right? And for that only we have brought this lecture series for you to make your problems go away, right? So we have already covered, right, completely all the topics in this particular lecture series. This is the last topic in this particular series, right? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਨਾਓ ਵਿਦ ਆਲ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਟਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ lecture of the day, right? But before that I have another important information. Punjab PCS mains ਲਈ ਚਾਣਕਿਆ IAS ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਈਕ ਸਿਵਲ ਵਿਦ ਆਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਨਸ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਕਸ, ਰਾਈਟ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਕਲੇਟਸ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਬੁਕਲੇਟਸ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਨਸ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਕਸ ਬੁਕਲੇਟਸ ਪਲੱਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ ₹8,000। ਜੇ ਓਨਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ₹5,000 ਵਿੱਚ, right? You can definitely go for it if you haven't subscribed for anything like that, ठीक है? चलो, so yes, now let's start our lecture. Last topic है अपना, last topic क्या है अपना? We are dealing with administrative ethics, right? Probity in governance हमने cover कर लिया। अब हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? Public civil services value and ethics in public administration, right? This is our topic, ठीक है? Okay, just a second students, yes। So इस टॉपिक के अंदर जो कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, लेट अस सी। सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है इसके अंदर? फर्स्ट इज स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, देन एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance, right? Then accountability and ethical governance, then strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding, corporate governance। डोंट वरी, सब कुछ फटाफट कवर हो जाएगा, ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं बट इम्पॉर्टेंट है एट द सेम टाइम, राइट? ओके, छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे अपने एंड वी विल कवर ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज टॉपिक्स, ऑल राइट? ओके, बट बिफोर दैट आपके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, ठीक है? यूपीएससी का अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपसे पूछी हुई है। देन हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है एंड हाउ विल यू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगेन 10 मार्कर था, ठीक है? 2019 का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स के अंदर आंसर करना था। नाउ यू विल, व्हाट यू कैन डू, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, टाइम लिमिट के अंदर लिखिए एंड यू कैन सेंड इट टू मी एट माई टेलीग्राम चैनल वेयर आई विल रिव्यू इट फॉर यू। आपको फीडबैक दूंगा लाइव, ठीक है? कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे, कुछ नहीं, वहाँ पर आप बस मेरे को भेजिए और मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड कर दूंगा इसके लिए कि व्हाट यू कुड हैव डन बेटर इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? ओके, so now let's start with the topic. By the way, topic है, जो पहला टॉपिक है status and problem in this civil services values, right? और क्या issues आते हैं इसके साथ, but हमें पहले क्या देखना है? We will be dealing with the, okay, just a second, whiteboard, ठीक है। तो सबसे पहले तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड सिविल सर्विसेज। वेट अ मिनट, राइट? पहले तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सर्विसेज, वर्ड आया यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज, और एक वर्ड आया इधर सिविल सर्विसेज। तो सम स्टूडेंट्स वर हैविंग डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दीज टू टर्म्स कि सर इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। सी, बिल्कुल सिंपल है। अगर पब्लिक सर्विसेज की बात करें तो एनी गवर्नमेंट पोस्ट, एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी
ठीक है, एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर ऑफिशियल आप कह सकते हैं, राइट। फिर चाहे वो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, राइट, वो कोई से भी इसमें से हो। और इसके साथ साथ कोई अगर गवर्नमेंट से एफिलिएटेड भी है, ठीक है, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड भी अगर कोई है तो वो सारे के सारे आपके पब्लिक सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो पब्लिक सर्विसेज एक ब्रॉडर टर्म है। और जब हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो दिस इज स्पेसिफिक, जो अपना एग्जाम होता है, लाइक सेंट्रल यूपीएससी लेता है अपने सेंट्रल सर्विसेज के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, और आपके पंजाब पीसीएस जैसे हम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो स्टेट सर्विसेज के लिए, राइट। तो बेसिकली ग्रेड ए की जो पोस्ट होती हैं, राइट, मोर और लेस ग्रेड ए जो पोस्ट होती है, ग्रेड बी की भी कुछ पोस्ट होती है, बट इसके अंदर आपके क्या आ जाएंगे, बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, राइट, सेंट्रल सर्विसेज आ जाएंगी इसके अंदर आपकी, राइट। ऑल इंडिया में कौन कौन सी आती हैं, आई होप आप पढ़ चुके होंगे पॉलिटी में, अब तक इतना तो जरूर आपको पता होगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है पब्लिक सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में, राइट। तो सिविल सर्विसेज आप कह सकते हैं, अगर ये पब्लिक सर्विसेज है तो सिविल सर्विसेज का एक पार्ट है, ठीक है, ये बन यस और नो, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस इज इनफ, राइट, ओके। और हम वैल्यूज की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, व्हाट डज वैल्यूज मींस, ठीक है। बट हमारा जो टॉपिक है, सी टॉपिक आपसे क्या बात कर रहा है कि सिविल सर्विसेज वैल्यूज, सिविल सर्विसेज वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि बीइंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होने के बाद कौन कौन सी वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है फॉलो करनी, और उनमें क्या क्या इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टराइजेशन होती है, राइट, कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशंस उसके अंदर आते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, बीइंग अ ऑफिसर, बीइंग अ डिग्निटरी, बीइंग अ पब्लिक डिग्निटरी, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज आपको फॉलो करनी है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर देखनी होती हैं। तो वहीं हम सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे, यस और नो, ठीक है। ऑलरेडी ऑल्दो हमने काफ़ी कुछ इसमें कवर कर रखा है पिछले टॉपिक्स में, वहीं पर आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली वॉच दोस प्रीवियस लेक्चर्स वेयर वी हैव कवर्ड दी ऑल दीज टॉपिक्स इफेक्टिवली, ठीक है। जब हम बात करते हैं वैल्यूज की, लाइक फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी वैल्यू है जो कि फॉलो करनी होती है किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यस और नो। साथ साथ आपको क्या होना होता है, यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इम्पार्शियल, यस और नो। Okay, so these are just examples of values that you need to follow in public services, but एक बहुत important sources हैं, like कि आपका एक पब्लिक सर्विसेज बिल है, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज बिल है जहां पर आपकी कुछ वैल्यूज के बारे में बात करी गई है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो करनी है, और एक नोडल कमेटी है, ठीक है, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, राइट। सो एक नोडल कमेटी है, उन्होंने कुछ वैल्यूज की बात करी थी दैट यू नीड टू फॉलो, राइट। इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेज हैं जहां पर पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज की बात करी गई है दैट यू नीड टू फॉलो। सो लेट अस सी ऑल दोज थिंग्स, राइट, सो लेट अस सी ऑल दोज थिंग्स, ओके। सी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, सो व्हाट डज इट मीन। See, administrative ethics are the professional code of morality in civil services. Yes or no? Administrative ethics regulate the conduct, behavior and actions of administrators. Right? इस यही काम होता है ना ethics का, हम इसके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं. That is why I am not repeating it again here. But we know what is ethics, we know what is administrative ethics, and we know the purpose of administrative ethics as well. Right? वो just यहाँ पे आपके एक तरीके से रिवीजन ही है. So since civil services occupy a position of trust, it is not enough for them to act merely within the bounds of rule. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सिर्फ आपको लॉज फॉलो करना जरूरी नहीं है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज एंड एथिक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना इश्यूज है, राइट, इश्यूज जो है एसोसिएटेड विद दिस पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज, वहां पर हम देखेंगे,
वी विल सी कि सिर्फ लॉस अगर फॉलो करे जा रहे होते हैं तो क्या इशू आता है, कि इशू आता है आपका रेड टेपिज्म। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि भैया सिर्फ लॉ के अंदर बाउंड होकर रह जाते हैं और उसी का यूज करके, बट एथिकली उस चीजों को नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा होता। तो एथिक्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड गवर्नेंस एस्पेक्ट, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली रन करने के लिए जिस पर्पज के लिए वो फॉर्म हुई थी। ठीक है, खैर, that civil servants are expected to reflect highest standards of morality all the time, yes, while conducting the affairs of the state। ठीक है, पब्लिक फिगर है, दे नीड टू बी एट द एटमोस्ट बिहेवियर। ठीक है, हमेशा टिप टॉप बिहेवियर होना चाहिए उनका, हमेशा हाईएस्ट स्टैंडर्ड मोरालिटी शो होनी चाहिए, इनफैक्ट फॉलो करनी चाहिए उनको, बिकॉज दे आर सेट expected to set highest moral standards not only for themselves but also for the community at large, right? ये reason है इसका। Then this has become even more important in changing times characterized by media vigilance, rising public awareness, and culture of transparency in governance। Because rise of media, इसकी वजह से और ज़्यादा important हो जाता है that the public servants need to ensure that they are maintaining the highest moral standards। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं आगे। Just a second, yes, ठीक। Administrative ethics are codified in the form of code of conduct and code of ethics. These provide the rule of the game of the administration। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स कहाँ पर आपके कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक भी हमने ये भी देखा था कि सिविल सर्विसेज के अंदर आपका सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स मिसिंग है, जो कि एक बहुत बड़ा लूप होल है आज की डेट में भी, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। नाउ नेक्स्ट, so this is important now, what values are included in administrative ethics। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी वैल्यूज उसका पार्ट होती हैं। सो इसके लिए एक पब्लिक सर्विसेज बिल, एक ड्राफ्ट बिल बना था, एक्ट नहीं पास हुआ, ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, उन्होंने ये ले डाउन किया था, राइट? दे प्रेजेंटेड दिस बिल, और इस बिल के अंदर क्या बात कर रखी थी, तो वैल्यूज दैट यू नीड टू फॉलो इन पब्लिक सर्विसेज, या फिर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो ये वाली वैल्यूज को फॉलो करे। कौन कौन सी? फर्स्ट, एलिजियंस टू द वेरियस आइडियल्स एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई होप सबको ही पता होगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। तो प्रीएम्बल के अंदर काफी सारी वैल्यूज की बात करी गई है, लाइक आपकी इंटेग्रिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, राइट, अ लॉट ऑफ अदर वैल्यूज, इक्वालिटी। ठीक है, तो उन सब से क्या रहना है, उन सबको फॉलो करना है। ठीक है, देन ए पॉलिटिकल फंक्शनिंग, मतलब किसी भी पॉलिटिकल अफिलिएशंस के साथ आपको नहीं एसोसिएट होना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं होना। यू नीड टू बी न्यूट्रल, यू नीड टू बी इक्वल, सबको इम्पार्शियली ट्रीट करना है, राइट? किसी के लिए बायस नहीं होना, किसी को फेवर नहीं देने, राइट? बट रियलिटी में क्या होता है वो डिफरेंट थिंग है, बट ये एक्सपेक्टेड होता है। देन गुड गवर्नेंस, good governance for betterment of the people to be the primary goal of civil service and civil services, right? या civil servants rather, कि good governance सबसे important aspect है, उसको हमेशा utmost priority देनी है। Then duty to act objectively and impartially, yes or no, right? Again, then accountability and transparency in decision making, you need to maintain accountability और transparency किसमें, decision making में। Then maintenance of highest ethical standards, यस और नो, आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स का हमेशा अटमोस्ट हाईएस्ट पीक पे रहने चाहिए। देन मेरिट टू बी द क्राइटेरिया इन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स कंसिस्टेंट हाउएवर विद द कल्चरल, एथनिक एंड अदर डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, मेरिट बेसिस सिलेक्शन भी जो है सिविल सर्वेंट्स का, वो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट? यू नीड टू इंश्योर ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, देन इंश्योरिंग इकोनॉमी एंड अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हमने पढ़ा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हमने पढ़ा है, तो ये वही बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिस यूटिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, राइट? और करप्शन बेसिकली नहीं होनी चाहिए कुल मिला के। देन प्रोविजन ऑफ हेल्दी एंड कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है, वर्क कल्चर है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं,
राइट, वो किस टाइप का होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर के अंदर किस टाइप का होता है, क्या इश्यूज होते हैं और क्या चीज़ फॉलो करनी होती है। बेसिकली डेमोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। द वर्क एनवायरनमेंट शुड बी डेमोक्रेटिक एंड नॉट ब्यूरोक्रेटिक, जबकि हो उल्टा रहा होता है, ब्यूरोक्रेटिक चल रहा होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता। ठीक है, so that is the thing. Then communication, consultation and cooperation in performance of functions, that is participation of all levels of personnel in management, right? सबको चांस देना है अपने, ठीक है, जित आपकी हायरार्की में जो लोअर स्टार्टअप में भी जो लोग हैं उनको भी आगे लेके आना है, उनकी भी बात, द एनवायरनमेंट शुड बी लाइक दैट कि जो नीचे भी जो भी आपके इंफीरियर उस पे भी हैं, लाइक जो आपके जूनियर्स हैं बेसिकली, उनको भी बोलने में झिझक ना हो, ठीक है, वो भी अपनी बात आगे रख पा रहे हो, उस टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स वर मेंशन्ड अंडर दिस पर्टिकुलर बिल, राइट? ओके, सो यस, देन नोडल कमिटी, लेट अस टॉक अबाउट दिस। ठीक है, सो नोडल कमिटी कब बनी थी बाय द वे? ये 1994 में, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर बनी थी। द कमिटी वाज ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, और किसकी चेयरमैनशिप के थी अंडर थी ये? लॉर्ड डोनलन। दैट इज द रीजन इसका नाम इन्हीं के नेम पे पड़ा है। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? द प्रिंसिपल्स दे टोल्ड, लाइक 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, राइट, जिनको हम किस उससे जानते हैं? सियाल हो। ये एक निमोनिक है जो बना रखा है हमने, राइट, सियाल हो। लेट अस सी देम वन बाय वन। द फर्स्ट इज एस स्टैंड फॉर सेल्फलेसनेस, राइट। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोलली इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना है, अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को पीछे रखना है हमेशा, पब्लिक इंटरेस्ट को आगे रखना है हमेशा, ठीक है। अपने लिए काम नहीं करना, लोगों के लिए काम करना है। पब्लिक ड्यूटी उनकी एटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यस और नो, इसके बारे में हम ऑल दो कई बार बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके 26/11 में जो तुकाराम ओम्बले, जो कांस्टेबल, जिन्होंने 40 गोलियां खाई थी, ठीक है, अजमल कसाब के आगे, सो दैट कि वो कसाब पकड़ा जाए, अपनी जान की परवाह भी ना करते हुए, राइट, उन्होंने ये एक्शन लिया था। एंड इट शोड द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ये क्या है? करेज एंड सेल्फलेसनेस, ये वाली दो चीजें, दो चार वैल्यू इसके अंदर डिस्प्ले होती हैं। देन इंटेग्रिटी, सेकंड इज इंटेग्रिटी, एंड आई होप इंटेग्रिटी तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्या मीनिंग होता है, बट इट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। Yes, officers of public, sorry, holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organization that might try inappropriately to influence them in their work. Okay, right, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीएन सेशन, ठीक है, टीएन सेशन कौन थे ये? ही वॉज अ 10th CEC, right, who reformed elections by large, ending its malpractices in the country and redefined the status and visibility of the Election Commission of इंडिया। यस और नो? इनका नाम हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज द रीजन आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर, ठीक है। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ओके, देन ऑब्जेक्टिविटी, द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। नाउ holders of public office must act and take decisions impartially, fairly and on merit, using the best evidence and without discrimination or bias। यहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, इम्पार्शियल रहना है, सब्जेक्टिव नहीं होना, आपको अनबायस रहना है, किसी को फेवर नहीं करना, सबको बराबरी से ट्रीट करना है। यस और नो? ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है आपको। देन यू शुड बी अकाउंटेबल। द पब्लिक सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल। यहाँ पर दो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब डिपार्टमेंट के अंदर भी आप अकाउंटेबल हैं, और एक्सटर्नल मतलब यू आर अकाउंटेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको दोनों मेंटेन करके रखनी है। यस, होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल टू पब्लिक फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शंस मस्ट सबमिट देमसेल्व्स टू द स्क्रूटिनी नेसेसरी टू एंश्योर दिस। यस और नो? देन नेक्स्ट इज आपका ओपननेस। Holders of public office should act and take decisions in an open and transparent manner, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, ओपननेस मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है। सो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात होगी। सो इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी विदहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक अनलेस देयर आर क्लियर एंड लॉफुल रीजंस फॉर डूइंग सो, ठीक है। ओपन रखनी है, ट्रांसपेरेंट रखनी है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आपको
राइट। यस। सो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसी के चलते, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी के चलते ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको आरटीआई के अंदर इंक्लूड करने की बात करी है, ऑल्दो उसको बाद में रिपील भी कर दिया गया था, बट स्टिल दैट, तो वो इसीलिए करा गया था। देन L स्टैंड्स फॉर लीडरशिप, H स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी, ठीक है। अब लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सीनियर आईएएस ऑफिसर परमेश्वरम अय्यर, ठीक है, ही गॉट इनसाइड द ट्विन टॉयलेट पिट इन तेलंगाना, ठीक है। वहां पर क्या करा था इन्होंने अपने हाथों से, ठीक है, फीकल मैटर को रिमूव करा था, टू शो, राइट, टू शो, लीड बाय एग्जांपल। लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू नीड टू लीड बाय एग्जांपल। तो आपको एग्जांपल सेट करने पड़ते हैं, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, तभी लोग उन चीज़ों को एग्री करेंगे आपके साथ, एंड दे विल ब्रिंग दोज ऑल दोज थिंग्स इनटू प्रैक्टिस दैट यू वांट देम टू बी, ठीक है। चलो, यस। इनके साथ साथ, ठीक है, ये नोलन कमेटी तो ठीक है देख ली, इन्होंने जो वैल्यूज बताई वो भी देख ली, बट इसके अलावा भी कुछ और वैल्यूज हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अदर फॉलो करनी, लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, एथिकल गवर्नेंस के अंदर। जो आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इमोशनली उनका ईक्यू लेवल जो है, इमोशनल क्वोशंट लेवल जो होता है वो हाई रहना चाहिए, इमोशंस कंट्रोल में रहने चाहिए उनके, ठीक है। इमोशंस को आगे नहीं आड़े नहीं आने देना होता, दे नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और साथ के साथ लोगों के साथ कनेक्ट भी करना होता है, तो एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है बाय द वे, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके साथ है डेडिकेशन, राइट, एम्पथी, कंपैशन, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ही आती हैं बाय द वे, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। यू नीड टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर जॉब, द क्वालिटी ऑफ रिमेनिंग कमिटेड टू पब्लिक कॉज एंड सिटीजन वेलफेयर इवन इन फेस ऑफ हार्डशिप्स, थ्रेट एंड टेम्पटेशंस, सारी प्रॉब्लमों को आड़े रखते हुए आपको अपनी जो ड्यूटी है उसकी तरफ डेडिकेटेड रहना चाहिए। देन एम्पथी एंड कंपैशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन वैल्यूज के अंदर हमने पढ़ा था कि एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंपैशन रखनी है आपको। महात्मा गांधी जी के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा था कि क्यों रखनी होती है कंपैशन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, राइट, कंपैशन को फॉलो करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। तो वहां पर वो वाले एग्जांपल्स आप डेफिनेटली दे सकते हैं, यस। देन टॉलरेंस, ठीक है, इट इज अ परमिसिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स स्पेशली व्हेन दे हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन और वी पॉइंट अपोजिट टू योर ओन ओपिनियन, राइट। अब टॉलरेंस का क्या मतलब है कि भैया सामने वाले बंदे अगर आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, उनका अलग ओपिनियन हो, आपके अगेंस्ट खड़े हो, तो वहां पर यू नीड टू बी टॉलरेंट, आपको कामली खड़े करना है, आपको कामली चीजों को फेस करना है, राइट। तो वो टॉलरेंट बिहेवियर बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और इस फील्ड के अंदर तो खासकर बहुत जरूरी होता है। देन एन इमोशनली इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट इंश्योर्स, ठीक है, एन इमोशनली इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट इंश्योर्स दैट द वर्क प्लेस एनवायरमेंट is conducive, disputes are resolved amicably, and staff remains committed to the work. Yes or no? So these are the qualities, these are the values, ठीक है, then that an civil servants need to follow. Okay. तो अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स इन इंडिया की बात करेंगे तो देयर इज अ कमिटी, ठीक है, संथनम कमिटी, काफी नाम सुना होगा आपने इनका, ठीक है, संथनम कमिटी। इन्होंने साफ साफ बोला, ये कोट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, दिस गोज बाय, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया डेवलपमेंट ऑफ आवर मटेरियल रिसोर्सेज एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ ऑफ ऑल क्लासेस आर इंडीड इम्पेरेटिव, यस, ठीक है, डेफिनेटली। एट द सेम टाइम द डिटेरेशन ऑफ इन द स्टैंडर्ड्स of public life has to be arrested. Ways and means have to be found to ensure that idealism and patriotism have the proper place in the ambition of our youth. The lack of moral earnestness, which has been a conspicuous feature of recent years, is perhaps the greatest single factor which hampers the growth of strong traditions of integrity and efficiency. See, थोड़ा typical है. If you want to use, you can use. If you want to skip it, you can skip that as well. ठीक है, और भी आपको कोट्स मिल जाएंगे, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर कि संथनम कमिटी, द कमिटी इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के अंदर कौन सी वैल्यूज फॉलो करनी है, क्या चीजें मेंटेन करके रखनी थी, उसके बारे में बात करी हुई है, ठीक है।
ओके, सो इन इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ठीक, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है बेसिकली वो कहाँ पर है, जो रूल्स जो हैं वो कौन कौन से फॉलो करे जाते हैं? सो देर आर थ्री, बेसिकली थ्री, उसके अलावा भी है बाय द वे। मेन इज ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1954, देन यू हैव सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1955, राइट, देन यू हैव रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1956, ठीक है। सो दीज थ्री आर द रूल्स दैट जो फॉलो करे जाते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है सिर्फ, कोड ऑफ कंडक्ट इज डिफाइंड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारी जगह कंडक्ट 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 लिखा हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, ये एक इशू है। कोड ऑफ एथिक्स भी बहुत जरूरी है जो कि नहीं डिसाइड किया जाता है, राइट। सो इन एडिशन टू दीज देयर आर सेवरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस डीलिंग विद द पर्टिकुलर सिचुएशन पर्टिकुलर pertaining to civil servants. The current set of enforceable norms are conduct rules typified by this and analogous rules. Okay. Point being कि these are the conduct rules, ठीक है, that are provided that civil servants need to follow. तो यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, जिसके बारे में हमने पहले बात करी हुई है कि क्या, राइट, इनफैक्ट सेकेंड ARC ने भी बोला हुआ इसके ऊपर कि देयर शुड बी अ सिविल सर्वेंट्स कोड, जिसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट प्लस कोड ऑफ एथिक्स दोनों डिफाइंड होने चाहिए। यस, ओके, सो नाउ लेट अस डील विद द स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। ओके, तो जब हम इश्यूज की बात करते हैं, ठीक है, सो यस, राइट, तो जो फर्स्ट इशू आएगा आपका वो है लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, देयर इज नो इंटीग्रेशन एज सीन, ठीक है। इंटीग्रेशन किसमें, देयर आर कंफ्लिक्टिंग मैंडेट्स, ठीक है, यू व्हाट यू सी विल इज कंफ्लिक्टिंग या फिर कंफ्लिक्टेड मैंडेट्स। मिनिस्ट्रीज के आपस में ही कन्फ्लिक्शन चलते रहते हैं, राइट, मिनिस्ट्रीज के आपस में ही कन्फ्लिक्शन चलते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, यस, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा, ठीक है, देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ओके, जस्ट अ सेकेंड, यस, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये किस में पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है, बाय द वे ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो इसका और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनके बहुत क्लैश चलते रहते हैं, बहुत चीज़ों के लिए अप्रूव नहीं करते आपस में ही, यस और नो, आपस में इनका क्लैश चलता रहता है। और इसके अलावा इनका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, उनके साथ ही इनका क्या चलता रहता है, कंफ्लिक्ट चलता रहता है काफ़ी सारे इश्यूज के ऊपर। देयर इज अ लैक ऑफ इंटीग्रेशन, साथ में आके नहीं चल रहे, इनफैक्ट अलग डाइवर्स ओपिनियन चल रहे होते हैं आपस में, ठीक है, तो कंफ्लिक्ट रहता है आपस में, तो वो एक इशू दिखता है। और लाइक मिनिस्ट्री ऑफ विमेन के साथ भी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनका आपस में कई बार क्लैश चलता है कि लाइक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कह रही है कि भैया ये विमेन की हेल्थ के लिए ये वाली जो आप पब्लिक पॉलिसी आप बना रहे हैं ये सही नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन उस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रही होती, तो वहाँ पर क्लैशेस चलते रहते हैं। तो देयर इज अ लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, यस और नो, राइट। सो देन नेक्स्ट और क्या है आपका, ठीक है, देन यू हैव एक्सटेंडेड वर्टिकल हायरार्की, एक्सटेंडेड वर्टिकल हायरार्की, तो आपको जो हायरार्कीज हैं बहुत ज़्यादा बनी हुई है, बहुत सारे डिफरेंट लेवल से बनी हुई है। लाइक नीचे चले जाओ आपके, तो यहाँ पर आपकी क्या विलेज पंचायत है, उसके ऊपर चले जाओ, राइट, देन यू हैव BDOs ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल पे, राइट, सो एंड सो फोर्थ। तो हो क्या रहा है, इतनी ज़्यादा आपकी हायरार्की लेवल बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हो, हर एक लेवल एक आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर आपके जो करप्शन के स्कोप है
करप्शन का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपके जो टाइम डिलेज हैं वो बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम डिले बढ़ जाएंगे आपके, डेफिनेटली ये सब आपके इश्यूज देखने को मिलेंगे यहाँ पर, राइट। देन यू विल सी टाइम डिलेज, यस और नो। ओके, एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, डेफिनेटली एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी क्या, डिक्रीज, यस और नो, राइट। देन सेकंड, उसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ये बेसिकली एक एलिटिस्ट माइंडसेट, एलिटिस्ट माइंडसेट ये देखने को मिलता है। अपने आप को जो है बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो दूसरों से क्या मानने लग जाते हैं, सुपीरियर, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानने लग जाते हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि हम उनके लिए हमें काम करना है, वो अपने आप को राजा वाली फीलिंग लेके आने चाहते हैं। तो उसका मिसयूज का, पावर का क्या करते हैं बेसिकली, फिर वो स्टार्ट कर देते हैं क्या, मिसयूज, मिसयूज ऑफ पावर। और लोगों के लिए प्रोएक्टिवली कुछ भी काम नहीं करना चाह रहे होते थे, लोगों के लिए काम नहीं कर, लोगों के हित में काम नहीं करते, ठीक है, वो अपने लिए प्राइवेट इंटरेस्ट को ही फिर आगे रखते हैं, दैट्स इट, यस और नो। सो दिस इज एन इशू। देन नेक्स्ट यू सी विल बी रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है बेसिकली, लॉ को प्रेसिडेंस दी जा रही होती है, किससे, एथिक्स के ऊपर। तो हर चीज को जो है बड़ी बड़ी फाइलों के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही चीजों को करा जा रहा होता है। सिर्फ लोगों को, चीजों को, जो एक्शंस हैं, जो भी आपके टास्क हैं, उनको इस चीज के लिए परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता कि हमें रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। जिस इंटेंशन से इसको करा गया था वो हमें वो रिजल्ट लेके आना है, वो हमें फिनिशिंग लाइन तक, लाइक वो टास्क को कंप्लीट करना है, उसके लिए जो उसका ऑब्जेक्टिव था। नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये कि भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करके रखनी है, कुछ भी हमें अनलॉफुल नहीं करना, दैट्स इट। तो उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता कि काम को पूरा करना है, सिर्फ फाइलों में चीज़ों को बंद करके रख दिया जाता है। तो ये रेड टेपिज्म, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, प्रोसीजर्स के अंदर ही बंदों को घुमा के रख दिया जाता है। इनएक्शन को फॉलो करा जा रहा है यहाँ पर, इनएक्शन प्रीसीड्स इनएक्शन, ठीक है। एक्टिविटी, प्रोएक्टिवनेस जो है पीछे रह जाता है, यस और नो। ओके, देन ठीक है, आपका जो एलिटिज्म माइंडसेट था उसी से रिलेटेड क्या है कि जो गैप है बिटवीन सिटीजन्स एंड सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो गैप है सिटीजन्स और सर्वेंट्स के बीच में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यस। एक सेकेंड, गैप बिटवीन सिविल सर्वेंट्स एंड सिटीजन्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, अनरीचेबल होते चले जा रहे हैं। एक एलिटिस्ट माइंडसेट है, वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं, दूसरों को इन्फीरियर मान रहे हैं, तो अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं, उनसे दूर रह रहे हैं वो, यस और नो। एक्शन लेने की टेंडेंसी ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ लॉफुल दायरे में रहना है, यस और नो। क्रेडिबिलिटी इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इट विल लीड टू व्हाट, जो क्रेडिबिलिटी है वो भी डेफिनेटली क्या होगी, इट विल टेक अ हिट, क्रेडिबिलिटी विल डिक्रीज, यस और नो, इट विल डाई डाउन, ठीक। देन व्हाट यू विल सी नेक्स्ट, आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही जो डिफरेंट लेवल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट सेटअप्स होते हैं, उनमें क्या मिलेंगी, कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्शंस अमंग देम द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल एक आईएएस और आईपीएस, ठीक है, आईएएस और एक आईपीएस ऑफिसर है, ऑल दो इनके मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता आपको, ठीक है, बट रियलिटी में क्या हो रहा होता है, जो आईएएस अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं क्योंकि पावर कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, तो हमेशा कन्फ्लिक्ट रहते हैं, आईपीएस की बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा होता। और इसके साथ साथ इसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो ऊपर बैठा, जो टॉप लेवल पे जो ऑफिसर बैठा होगा, ठीक है, और जो नीचे लोअर लेवल पे जो ऑफिसर बैठे होते हैं, इनको कुछ नहीं समझाया जा रहा होता, इनकी बात भी नहीं सुनी जा रही होती, ठीक है। तो ये वाले इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देन और जो आपकी पब्लिक सर्विसेज हैं वो डेली डे बाय डे क्या बनती जा रही है, इनएडिक्वेट बनती जा रही हैं, बिकॉज ये बेसिकली जनरलाइज होते हैं, जनरलाइज्ड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जनरलाइज सर्विसेज के लिए, दे आर नॉट व्हाट, स्पेशलाइजेशंस तो नहीं होती कोई भी। तो टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर टॉपिक को डील करने के लिए टाइम के साथ साथ जो है बेसिकली इनएक्टिव होते जा रहे हैं, एक्टिवनेस नहीं चली जाती है, प्रोएक्टिवनेस आती जा रही है, यस,
ठीक है, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्स विद द लेवल, राइट। जो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, तो आपको उसके साथ साथ अपने लेवल को मेंटेन करना होता है, वो चीज़ें नहीं करी जा रही, तो वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा इशू है विद द करंट पब्लिक सिविल सर्विसेज। Yes or no? So this was all from this particular topic. We will deal with the next topic in the next lecture. Next lecture के अंदर इन चीज़ों को कवर करेंगे, और हम आपको, आई एम टेलिंग यू, वी आर रीचिंग टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। बहुत ही जल्दी लेक्चर सीरीज आपकी खत्म होने वाली है, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं जो आपने अब तक कवर नहीं करे, यू कैन डेफिनेटली वॉच दोज लेक्चर्स एंड कवर योर topics so that you can score well in your particular exam, right? So now with this, I wish you good luck for your future endeavors, and until our next lecture, take care and bye bye. Thank you.